بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 9 مارچ ہے، سال 2022 ہے۔ شہر اقتدار کے اندر اس وقت بڑی گہما گہمی ہے۔ ایک طرف آصف زرداری، شہباز شریف اور فضل الرحمان اپنے نمبر پورے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف شہباز شریف کا جو کیس ہے اس حوالے سے بھی بڑی بازگشت ہے کہ کل ان پر شاید فرد جرم عائد ہوگی یا فرد جرم عائد نہیں ہوگی۔ اور وزیر اعظم سے جو گزشتہ روز ہماری ملاقات ہوئی اس کے اندر انہوں نے ایک ایسا تاثر دیا کہ شاید شہباز شریف کا جو کیسز ہیں ان کا اگلے 3-4 ماہ کے اندر فیصلہ ہوگا۔ کیا یہ فیصلہ ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت جو ایف آئی اے کے پراسیکیوٹر ہیں، جو شہباز شریف کے خلاف ثبوت لانے والی ٹیم ہے، وہ اس کے ایک عام ممبر پراسیکیوٹر ہیں معظم حبیب صاحب، وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج شہباز شریف کا ٹی ٹی اسکینڈل کیس جو ہے اس حوالے سے ڈیٹیل کے ساتھ ان سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ معظم بھائی۔ اچھا، آپ تھوڑا سا یہ بتائیے کہ کل جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف پر فرد جرم عائد ہوگی، وہ اس حوالے سے کچھ چرچے مگوئیاں ہو رہی ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا بتائیے کہ اس کیس کے اندر حمزہ شہباز یا شہباز شریف کے خلاف کس طرح کے ثبوت موجود ہیں؟ بہت شکریہ گوندل صاحب۔ سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اس کیس کو شوگر انکوائری کمیشن میں جب اس کی رپورٹ فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے پیش ہوئی تو اس رپورٹ میں کہا گیا کہ جناب ٹوٹل 9 شوگر ملز کے خلاف یہ بیسیکلی انکوائری ان پہ ہوئی، جس میں سے رمضان شوگر مل جو کہ ان شریف گروپ کی تھی، تو اس کے جب اکاؤنٹس کو انہوں نے دیکھا تو انہیں وہاں پہ کچھ ایسے انڈکلیئرڈ اکاؤنٹس نظر آئے ایف آئی اے کو، جس کی بنیاد پہ انکوائری کو کنکلوڈ انہوں نے جب کیا تو انہوں نے کہا دیا کہ جناب یہ ٹوٹل تقریباً کوئی 57 کے قریب اکاؤنٹ ہیں اور تقریباً 60,000 کے قریب اس کی ٹرانزیکشنز ہیں، جس پہ 14 نومبر 2020 کو ایک ایف آئی آر کاٹی۔ اب ایف آئی آر کٹنے کے بعد اس کی انویسٹیگیشن کا پروسیس شروع ہوا، اور انویسٹیگیشن کے دوران انہوں نے ٹوٹل جو 28 اکاؤنٹ تھے جن کا کوئی شوگر کے بزنس سے تعلق نہیں تھا، اس کے متعلق جب انہوں نے تفتیش فردر شروع کی کہ اس میں تمام رقم کہاں سے آئی ہیں اور کہاں گئی ہیں، تو ان رقومات کو کی روشنی اور ان کی ایویڈنس آنے کے بعد جب اس کو ایف آئی اے کی فورینسک ٹیم نے اور ان کی جو فائنینشیل ایکسپرٹس تھے انہوں نے جب اس کو مزید انویسٹیگیٹ کیا تو انہیں نظر آیا کہ یہ تو ان کے ملازمین چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ تھے، جس میں 14.34 بلین روپیز کی ٹرانزیکشنز ہوئی۔ اب ان ٹرانزیکشنز میں انہوں نے ان کو جب مزید 15,000 ٹرانزیکشن ٹریک ڈاؤن کر کے ان کی انویسٹیگیشن کی تو فردر چیزیں نظر آئی کہ یہ اکاؤنٹ جو یہ سب کے سب ملازم تھے وہ رمضان شوگر مل کے ملازم تھے، اور ان کا وہ پیسہ جو مختلف ایکسٹرینیس سورسز سے آتا تھا وہ ان اکاؤنٹوں میں جمع کرواتے تھے، اور پھر کیش کی صورت میں ان کے جو کیش رائڈرز تھے وہ نکلوا لیتے تھے۔ اب شہباز شریف کے خلاف اس میں 2 طرح کی ایویڈنس موجود ہے۔ ایک ایویڈنس ان کے خلاف یہ ہے کہ جناب انہوں نے ایک پی ایم ایل این کا جو گجرات کا جو ورکر تھا، ان کا نمائندہ تھا، وہاں سے انہوں نے کچھ تقریباً 50 لاکھ کے قریب چیکس جو ہیں اس نے شہباز شریف صاحب کو دیے، جو کہ ایک چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے۔ اب اگر یہ پارٹی فنڈ بھی کنسیڈر کر لیا جائے، یہ ان کا پارٹی فنڈ بھی ہے، تو وہ پارٹی کے اکاؤنٹ میں جانا چاہیے تھا، لیکن وہ ایک گلزار احمد جس کی بعد میں ڈیتھ ہونے کے باوجود اس کا اکاؤنٹ چلتا رہا، اس کے اکاؤنٹ میں یہ جمع ہوتے ہیں، اور وہاں سے مسرور انور نامی ایک جو شریک ملزم ہے وہ ان پیسے کو نکلواتا ہے، اور یہ وہی بندہ ہے جو کہ شہباز شریف صاحب کے جو ڈکلیئرڈ اکاؤنٹ ہیں ان میں 2011 سے لے کر 2017 تک ہی واز دی اونلی پرسن جو اس میں پیسے ڈپازٹ بھی کروا رہا تھا اور اس سے وڈرا بھی نکال رہا تھا۔ تو ایک تو ان کا ایف آئی اے کے چالان کے مطابق ان کا ان اکاؤنٹوں پہ فائنینشیل کنٹرول تھا۔ دوسرا اوبیسلی جو لاجسٹک سپورٹ اس منی لانڈرنگ ہیز کے لیے دی گئی وہ شہباز شریف کے اور حمزہ ان کے بیٹے بھی ہیں اور اس وقت ایم این اے تھے، وہ سی ای او تھے رمضان شوگر مل۔ اس سی ای او نے اپنے ملازم اپنی فائنانس ٹیم کے ذریعے اس پوری منی لانڈرنگ اسکیم کو ہائڈ کیا۔ اب بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی جناب ہمارا شہباز شریف صاحب، میں رمضان شوگر مل کا نہ ان کا سی ای او تھا نہ ڈائریکٹر تھا، میرا کوئی لنک نہیں ہے، لیکن یہ آپ چیف منسٹر تھے، اور چیف منسٹر کے دوران ایکسٹرینیس سورسز سے پیسہ اکٹھا کرنا وہ آپ کی امبریلا سے ہو رہا تھا، آپ کے نالج سے ہو رہا تھا۔
ठीक हो गया, FIA ने कंक्लूड ये किया है। अब उसके बाद मुख्तलिफ लीगल इश्यूज़ पे बहस चलती रही अदालत में कि पहले ये केस बैंकिंग कोर्ट में चलता रहा, उसके बाद ये केस अब जो है स्पेशल जज सेंट्रल जो एंटी करप्शन कोर्ट जिसे हम कह सकते हैं, उस अदालत में चल रहा है। फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, जज साहब ने फ़र्द जुर्म का चार्ज भी तैयार कर लिया। यूँ ही वो फ़र्द जुर्म की प्रोसीडिंग उन्होंने जिस दिन करनी थी उस दिन इन्होंने अपने मुख्तलिफ मिसलिनियस दरखास्तें फ़ाइल करवा दी कि ये जब मैं कॉपियाँ नहीं अच्छा, मिली मैं ये वो। एक बात आपसे ना मुअज़्ज़म भाई पूछूंगा, चूँकि कहा जाता है कि शायद ये कोई FIA और शहबाज शरीफ और उनकी मिली भगत थी। पहले ये पूरा जो मुकदमा है वो चलता रहा है यहाँ पर और अदालत के अंदर, आपको इल्म है। अब आप स्पेशल कोर्ट के अंदर ये चीज़ें लेकर आए हैं, तो 8 महीने तक एक अदालत के अंदर यानी बैंकिंग कोर्ट के अंदर मुकदमा चलता है, और आपकी जो टीम है यानी आप जब आए हैं तो इसको दूसरी तरफ लेकर आप गए हैं। तो आप ये बताइए कि वो 8 महीने तक टीम को पता नहीं था कि इसके कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है या इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है? देखें, शुरू से FIA बड़ी क्लियर थी। FIA बड़ी क्लियर थी कि जनाब इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। FIA ने कभी भी उस अदालत की जुरिस्डिक्शन को नहीं माना। ये शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज और दीगर मुशतरक मुल्ज़मान थे जिन्होंने जाके बैंकिंग कोर्ट से अपनी प्री अरेस्ट ज़मानत, अबूरी ज़मानत ले ली। जब उस अदालत में जाके FIA की टीम और प्रोसिक्यूशन टीम ने जाके ऑब्जेक्शन लिया, तो उस पे उन्होंने कहा कि आप चालान पेश करें। चालान जहाँ पे आप पेश करेंगे वो उस अदालत की जुरिस्डिक्शन होगी, तब तक एक इन्वेस्टिगेशन को एडवांस स्टेज में चली जाएगी। जब इन्वेस्टिगेशन को चालान की फॉर्म में पेश किया गया तो उस वक़्त FIA की ये मुतफ़िक़ा उनके बोर्ड ने ये होल्ड किया कि ये जो मुकदमा है ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 के नीचे और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो आमला 2010 है उसके नीचे ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, ये गिल्टी हैं शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज और दीगर मुल्ज़मान। तो लिहाजा उस अदालत में चले गए। उस पे मुख्तलिफ डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की गई हैं डिफेंस साइड से। अगर आप पूरी ऑर्डर शीट उठा के देख लें तो उनकी तरफ से इल्तवा की दरख्वास्तें ऑन ग्राउंड ऑफ मेडिकल इलनेस, उसमें 2 दफ़ा शहबाज शरीफ साहब को कोरोना हुआ, उस वजह से मुख्तलिफ डेटें होती रहीं। तो ये वजह थी। FIA हमेशा से क्लियर थी, लेकिन क्योंकि इन्होंने खुद जाके वहाँ से ज़मानतें ले ली थी बैंकिंग कोर्ट से, तो लिहाजा उस अदालत को फ़ैसला करना था कि ये उनकी दायरा इख्तियार समात है या नहीं। अच्छा, कल हमारी वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई और वहाँ से जो परसेप्शन बनी है, मैं तो ये अंदाज़ा कर रहा हूँ कि शायद वज़ीर आज़म की जो टीम है उनको सही आगाह नहीं करती, और प्राइम मिनिस्टर ये समझ रहे हैं कि शायद अगले 3 या 4 महीनों के अंदर शहबाज शरीफ को सज़ा होने वाली है। मैं उसी वक्त जो है वो बड़ा हैरान हुआ हूँ कि वो, मैंने सवाल भी किया है प्राइम मिनिस्टर से कल, कि जब पहले 3.5 साल के अंदर अदालतों ने शहबाज शरीफ को सज़ा दे दी, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगले 3-4 महीने के अंदर, अभी इतना टाइम तो इन्होंने फ़र्द जुर्म में ले लेना है। हमारा अदालती सिस्टम इतना कमज़ोर है, लेकिन टीम ने शायद उनको इस तरह कोई कम्युनिकेट किया हुआ है कि ये 3-4 महीने हैं और इनके अंदर इनको केसेस बड़े मैच्योर हो रहे हैं। ये आप थोड़ा सा बताइए कि क्या अगले 3-4 महीने या 6 महीने तक जो हमारा ये सिस्टम है उसके मुताबिक कोई सज़ा होने का चांस है इस केस के मैं अंदर? बता दूं, 28 जनवरी 2000 या 28 फरवरी को जो लास्ट हेयरिंग हुई है उस पर FIA ने डे टू डे हेयरिंग की दरख्वास्त दी है, जिसका फ़ैसला भी कल जो स्पेशल जज सेंट्रल है उन्होंने करना है। अगर तो फ़र्द जुर्म आयद हो के इस पे हेयरिंग शुरू हो जाती है, डे टू डे हेयरिंग शुरू हो जाती है, तो फिर तो ये मैं कोई टाइम डिफाइन तो नहीं करूँगा, लेकिन एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल केस आगे बढ़ सकता है और अपने मंतकी इंजाम तक जाना है इस केस में। देखें, जब अदालत ने ही फैसला करना है, FIA ने अपने पूरे विटनेसेस पेश करने हैं, उसकी रोशनी में या अदालत इनको सज़ा दे देगी या अदालत इनको बरी कर सकती है अगर इनको। तो लिहाजा डिले करना, और डिले ये इसी वजह से डिले कर रहे हैं ताकि हमें एक पॉलिटिकल स्पेस मिल जाए। लिहाजा उनके अलावा अगर वो लोग केस मेरिट पे करें कंटेस्ट, तो वो वहाँ पे जाके उनकी ये प्ली नहीं होती। कभी कोई रिक्वेस्ट की जाती है कि लंबी लंबी डेट्स थे, अभी असम्बली का सेशन है, अभी वो मार्च में बिजी हैं, अभी पॉलिटिकल एक्टिविटी में बिजी है, लेकिन केस जो भी उसका फैसला होना है, प्रोसिक्यूशन ने अपनी एविडेंस पेश करनी है, आप अपने जवाबात, अपनी एक्सप्लेनेशन अदालत को देंगे, ठीक है, उसमें से उनको दोनों तरफ अदालत इंडिपेंडेंट फैसला करेगी। तो लिहाजा
ये बिल्कुल एफआईए और इनकी तरफ से कोशिश है कि केस को आगे तो बढ़ने दिया जाए। अच्छा। कम से कम इसमें तो किसी भी मुल्ज़म की के जो फंडामेंटल राइट्स या आर्टिकल 10 ए की बात की जाती है बार-बार, वो तो उनके डिस्टर्ब नहीं होते। जितनी जल्दी फैसला आएगा उनको बार-बार वो कहेंगे जी मेरी एक जिसे कहते हैं ना अदालतों में मेरी बार-बार पेशी होती है, उससे ये है कि अदालतों को उसका फैसला जल्दी आ जाएगा, जो कि उनके लिए भी अच्छी बात है कि अच्छा, ये बताइए कि इनकी जो ज़मानत है, अबूरी ज़मानत रूटीन के अंदर जो हमारे केसेस होते हैं अदालतों के अंदर, क्या तमाम मुल्ज़मान की अबूरी ज़मानतें इतनी लंबी चलती हैं जितनी आप वैसे अपने एक्सपीरियंस की बेस पे मैं अपने आप 11 साल बताइए कि इनके ज़्यादा चलती हैं? मैं 11 साल कैरियर में अपने बता देता हूँ कि किसी भी मुल्ज़म की तकरीबन अब 9 माह से ये अबूरी ज़मानत पे है। मैंने आज तक 9 महीनों में कभी भी इतनी लंबी किसी भी अबूरी ज़मानत को नहीं देखा। तो ज़ाहिर है ये 3-4 एक पेशियों में जी, मैक्सिमम जी। 5-6 पेशियों में वो प्री अरेस्ट बेल डिसाइड हो जाती है। यहाँ पे तकरीबन कोई 19 के करीब मुल्ज़मान हैं जो कि प्री अरेस्ट बेल पे हैं और एफआईए को उसको बार-बार कहा जाता है कि ये डिले का शिकार है। जब तक और उनकी तरफ से कोई उनका वकील आज तक बहस करने को तैयार नहीं है। एफआईए हर पेशी पे जाके कहती है जी बहस करें आप। लेकिन अदालतों को भी ज़ाहिर बात है इसीलिए तो हमारा आम जो एक आम शहरी भी है वो इन अदालतों के डिले की वजह से परेशान है। यानी ये इतना बड़ा माफिया है कि इनके सामने हमारा जो निज़ाम है अदालती, वो भी हमें थोड़ा सा यानी एक नहीं दो पाकिस्तान नज़र आते हैं इस मामले में। अब ये बताइए आपका जो अपना एनालिसिस है, चूँकि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, एविडेंस आप जो है वो स्टडी कर चुके हैं। तो इनकी पहले तो बताइए कि ये जो ज़मानत है, अबूरी ज़मानत, ये आपको लग रहा है कि ये ख़ारिज होने जा रही है? अगर तो मैं तो प्रोसिक्यूटर हूँ तो कानूनी ही बात करूँगा। कानून के मुताबिक तो सिर्फ़ 2 ग्राउंड्स पे प्री अरेस्ट बेल को कंफर्म किया जा सकता है। एक कि एफआईए ने ये मेलाफिडे की बुनियाद पे केस बनाया है। ऐसा कोई नहीं है एविडेंस की बुनियाद पे है, सारा बैंकिंग ट्रांजैक्शन है। ये भी नहीं कि कोई अप्रूवर बना लिए हों जिसकी वजह से ये कहा हो कि जी इन पे प्रेशर है और ये अप्रूवर है। डॉक्यूमेंट्री केस है सारा, ठीक है? इनके अकाउंटों में पैसे गए हैं, पैसे आए हैं, इनके किसी की भी इनकी अगर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ जो पहले कहीं भी नहीं किसी भी ने नहीं की इसको, कि जो इनकी प्री अरेस्ट बेल जिन शरीक मुल्ज़मान और ये जो चपरासियों की आई हैं उसमें खुद वो मानते हैं, कहते हैं कि जनाब वो बिल्कुल उनके अकाउंट में जो भी पैसे आए गए हैं वो मुलाज़म थे ये अपना रमज़ान शुगर मिल के और उनके जो जो उनके बॉसेस कहते थे उन्हीं के वो खुद उसमें और एफिडेविट साइन किया हुआ है उन्होंने उस जो है अपनी बेल एप्लीकेशंस के साथ। तो लिहाजा मेरा ये इसमें कहना है कि ये एक एफआईए ने और ये एक प्रोसिक्यूटेबल केस है जिसमें इनको और अदालत ने फैसला किया है कि मैं इस केस पे कॉग्निजेंस लेके इसको आगे लेके चलते हैं क्योंकि इतनी सफिशिएंट एविडेंस है इनके खिलाफ कि हम प्रोसीड कर सकते हैं। यानी इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म को ये बताया गया है कि शायद इनकी जो ज़मानत है वो उड़ जाएगी और शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज जो है वो इन चंद महीनों के अंदर गिरफ्तार हो जाएंगे। देखें अदालत का फैसला आएगा तो उसी की रोशनी में ही अदालत ने फैसला करना है। कोई प्रेडिक्शन कि ये है हाँ मटेरियल की बुनियाद पे जो इनके ख़िलाफ़ जो केस बनता है उसकी बुनियाद पे ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जनाब उनको कोई ऐसी ग्राउंड अवेलेबल नहीं है जिसकी बुनियाद पे इनकी की ज़मानत को कन्फर्म किया जाए। अच्छा, सिर्फ आखिरी मुझे एक बता दें मुख्तसरन कि मेरिट पर तमाम आप डॉक्यूमेंट्स देख चुके हैं, जो एविडेंसेस हैं, अगर कानून के मुताबिक फ़ैसला होता है और जिस तरह वैसे तो इस मुल्क के अंदर बड़े एनआरओ चलते हैं, बहुत कुछ बचाया जाता है, तो ये इन डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की बेस पर शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज को मेरिट पर आपको सज़ा मिलती हुई नज़र आ रही है? देखिए मेरिट की कानूनी बात करूँगा कि कानून के मुताबिक इतनी एविडेंस मौजूद है और ये आपको गोंदा साहब एक बात आपको बताता चलूँ कि ये जो वाइट कॉलर क्राइम है इसमें जो बारे सबूत प्रोसिक्यूशन पे ही है कि इन्होंने साबित करना है ये इनके अकाउंट होल्डर्स थे, ये इनके मुलाजम थे, इसमें इतने पैसे आए, ये इनके पास कोई सोर्सेज इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए अपने एसेट बियॉन्ड मींस इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया और इनके बेनामी अकाउंट्स हैं। उसके बाद इन्होंने अपने डिफेंस में जो कानून जो कोका है अपना प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 उसमें बारे सबूत इन बातों के बाद प्रोसिक्यूशन के बाद उन पे शिफ्ट हो जाता है कि फिर उन्होंने बताना है कि ये पैसा किनका है। या तो मुलाजम के हम इतने जल्दी पुश्ती अमीर थे, जी, जी। वो तो 5-5 हज़ार से लेकर 25,000 रुपये तक उनकी सिर्फ तनख्वाह थी जिस उस तनख्वाह पे वो काम करते थे और जहाँ पे उनके अकाउंट में मकसूद
चपरासी के अकाउंट में 3.4 बिलियन रुपये 7 बिलियन रुपीज़ ट्रांजैक्ट हुआ है। तो लिहाजा वो और कानून सेटल्ड है, इस पे आपको पाकिस्तान और इंडिया में बहुत सारा केस मिल जाता है कि अगर मुलाजम का पैसा है और वो जस्टिफाई नहीं करता तो वो उसके मालिक का पैसा ही ट्रीट होता है। जी बहुत शुक्रिया मुअज़्ज़म हबीब एडवोकेट साहब, जो FIA की तरफ से प्रोसिक्यूटर हैं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के TT स्कैंडल के अंदर, और वो बता रहे हैं कि अगर मेरिट पर फैसला होता है तो यकीनन सफिशेंट एविडेंस मौजूद है कि ये मुल्ज़मान अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।